Next, again page number 74, question number 3. How does Maddie feel after listening to note from Vanda's father? Okay. See, Maddie, she was one of the child from Vanda's school, one of the classmate of Vanda's school, room number 13. Okay. So when Miss Mason read out that letter to the class, at that time, what was the feeling of Maddie? Maddie को क्या लगा? What was the feeling of Maddie? Hmm? See, Maddie, she felt very sorry for her behavior. Okay, she realized her mistake. Maddie realized her mistake. She felt very sorry for her behavior. Okay, and she decided that although she was not making fun of Wanda, but still she is standing there without saying anything. Okay, and means she never stopped Peggy from doing so. Peggy was bullying Wanda and she was standing over there, but she didn't stop Peggy to do so. Okay, and so means she remained there just like a silent spectator, darshak देखने वाला, just मजा देखने वाला. So she feels that she was a coward. She was a coward. She feels that she was a coward. कि उसको अच्छा नहीं लगा ये बिल्कुल भी. She feels, उसको लगा कि वो coward है and she should not do the thing again. Okay, and that's why she felt very sorry for Wanda and she felt ashamed of herself. खुद की शर्म आ रही थी उसको. She felt ashamed of herself. Okay. Now, question number 4 from page number 78. What does Maddie want to do? What does Maddie want to do? Now, means when she heard, when she listened the note by Vanda's father at that time, means what does Maddie want to do? Okay, so first thing, she want to amend her behavior. उसको अपना behavior सुधारना था. She had been very rude to Wanda, so she want to amend her behavior. Okay. She want to meet Wanda and apologize for her mistake. Second thing, she want to meet Wanda and apologize. Apologize, माफी मांगना हाथ जोड़ के कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करो ऐसा. So she wanted to apologize for her mistake by meeting Wanda. Okay. तीसरा, and that's why she decided that she should go to Bogin's Height where Wanda lived. जहाँ Wanda रहती है, so she should go there. What is the name of place? Place का नाम क्या है? Bogin's Height. Okay. She means also want to convey that means just she was making fun. She didn't mean to hurt Wanda. ठीक है. तो मीन्स पीपल रियली लव हर, मतलब सब लोग उसको सच में, मतलब कोई उसको टीज कर रहे थे, इसका मतलब जस्ट दे आर मेकिंग फन. इट इज ओनली अ सॉर्ट ऑफ टाइम पास. शी शुड नॉट टेक इट पर्सनली. Okay, means other students, they did not want to hurt her that much badly that she has taken. So she want to clarify her and that's why she wanted to meet Wanda. Wanda को उसे मिलना था. Fourth question clear बेटा? Everybody got the question clear? Good. Okay. Yes. Thank you, Chanchal. Now, oral comprehension check देखो. Page number 76 पर आ जाओ अभी. Okay. Page number 76. 74 oral comprehension check is over. Now page number 76. What excuses does Peggy think of giving in justification of her behavior and why? See, some people, they did not take responsibility. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो गलती वो करते हैं पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर कभी नहीं लेना चाहते. Okay, so some people means what do they what do you think what do they do then? फिर वो क्या करते हैं? They will find out excuses. In the same manner, Peggy, she was not a responsible type of person, and that's why she was finding excuses for her behavior. उसके behavior के लिए क्या ढूंढ रही थी वो?
एक्सक्यूजेस ढूंढ रही थी. तो मतलब वो कौन से एक्सक्यूजेस पेगी दे रही है फॉर जस्टिफाइंग हर बिहेवियर. मीन्स शी वॉज राइट, शी वॉन्ट टू प्रूव दैट शी वॉज ऑलवेज राइट. तो इसके लिए वो कौन से एक्सक्यूजेस ढूंढ रही है एंड वाई. ओके, सो Peggy tried to defend herself by saying that her behavior towards Wanda inspired her to explore her drawing skill. देखो उसको क्या मतलब उसमें भी क्रेडिट वो ही लेना चाहती है. She got medal in drawing competition. She was selected. Her all drawings were selected as one of the superior ones than others, and so that वो उसका भी क्रेडिट. So that credit also taken by Wanda. What she says कि because she behaved like that to Wanda and because of that means she could win drawing competition. Drawing competition उसने क्यों जीता? So because means every day she used to ask her about 100 dresses and so that she could explore her skills. उसके skills वो ज्यादा अच्छे से explore कर पाई. Okay, what was the reason? Because every day she used to answer the questions. Wanda used to answer the questions regarding 100 dresses. So तो इस वजह से मीन्स उसको मोटिवेशन मिला. शी गॉट मोटिवेशन, वेंडा गॉट मोटिवेशन, वेंडा गॉट इंस्पिरेशन. ओके, एंड सो शी कुड स्केच 100 ड्रेसेस एंड दैट्स व्हाई शी कुड विन दैट ड्राइंग कंटेस्ट. सो मैंने बताया ना, दे विल फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल एक्सक्यूजेस. ओके, तो उसने ये क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया दैट एवरी डे शी वाज आस्किंग about 100 dresses. Peggy was asking about 100 dresses. And when she was asking about 100 dresses, in that case, उसमें क्या हो रहा था? 100 dresses के बारे में जब भी वो पूछती थी, she could explore her skills. उसके skills वो ज्यादा बढ़ा रही थी. ड्रेसेस को कैसे कॉन्टेस्ट करो, सॉरी ड्रेसेस को कैसे प्रेजेंट करो, ठीक है, ड्रॉ करो. सेकंड क्वेश्चन, what are Maddie's thoughts as they go to Bogin's height? अभी मैडी जो है तो वो बोगिन्स हाइट जा रही थी, तो उससे मतलब उसके थॉट्स वो क्या सोच रही थी. एक्चुअली सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन वांडास बिहेवियर, सॉरी पेगीज बिहेवियर एंड मैडीज बिहेवियर. मैडी और पेगी दोनों फ्रेंड्स है, बट बोथ ऑफ द फ्रेंड्स दे बिहेव डिफरेंटली टू द सिचुएशन. मैडी फील अशेम ऑफ हरसेल्फ, उसको खुद पर दया आ रही थी, खुद की शर्म आ रही थी. हाउ शी कुड डू सो, कि वो ऐसा कैसे कर सकती. एंड पेगी वाज प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि उसने ऐसा किया एंड दैट्स व्हाई शी कुड विन ड्राइंग कंटेस्ट. सो बोथ द फ्रेंड्स देयर बिहेवियर वाज डिफरेंट. तो इसीलिए पूछा है कि मैडी जो है तो मैडी के थॉट्स कैसे थे व्हेन दे वर मूविंग टुवर्ड्स और गोइंग टुवर्ड्स बोगिन्स हाइट. बोगिन्स हाइट कौन सा प्लेस है? वेयर वांडा यूज्ड टू लिव, जहां पर वांडा का घर था. ओके, सो फर्स्ट थिंग, मैडी शी वाज अशेम ऑफ हरसेल्फ, उसको खुद की शर्म आ रही थी. सेकंड, शी वांट टू अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर, उसको उसके बिहेवियर की माफी मांगनी थी. ओके, कि कैसे टाइप से उसने मतलब पेगी ने मतलब वांडा को ह्यूमिलिएट किया और वो वहां शी वाज स्टैंडिंग देयर जस्ट लाइक अ साइलेंट स्पेक्टेटर. ठीक है, जैसे मूवी देखने के वक्त शांति से बैठते हैं ना, इन द सेम मैनर शी वाज स्टैंडिंग देयर जस्ट लाइक अ साइलेंट स्पेक्टेटर. सो शी वाज फीलिंग वेरी अपसेट, वेरी अनहैप्पी फॉर वांडा. ओके, एंड शी वाज रिपेंटिंग. रिपेंट, ये वर्ड को याद रखो. रिपेंट इट मींस पछतावा होना. ओके, उसको अपनी बिहेवियर का रिपेंटेंस हो रहा था, पछतावा हो रहा था. ओके, शी वाज रिपेंटिंग फॉर हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर का उसको पछतावा हो रहा था. फॉर बिहेविंग बैडली विथ वांडा, इतने बैडली उसने वांडा के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था. सो शी वाज, what she was doing, she was just thinking that how to ask for apologize, मतलब माफी के लिए भी कैसे पूछे. ओके, मतलब उसकी गलती इतनी बड़ी है तो माफी के लिए भी कौन से मुंह से वहां पर बोले. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज वांडास हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडास ब्लू ड्रेस. वापस वांडा का घर देखा उन्होंने दूर से बोगिन साइट में,
सो उस मतलब घर को देखकर उसको वांडा का ब्लू कलर का ड्रेस याद आया, दैट शी यूज टू वॉर एवरी डे फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वही ड्रेस पहनती थी। तो मतलब वो जो ना मतलब वो जो ड्रेस है तो वो उसको मतलब कैसे क्यों रिमाइंड हुआ। सी वांडा का जो घर था दैट वाज फार अवे फ्रॉम मीन्स सिटी और टाउन, वो टाउन से दूर था, बहुत आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बोल सकते हैं। ओके, सो दैट हर हाउस वाज वेरी फेडेड, मतलब बहुत फेडेड छोटा सा घर था और एकदम मतलब कलरलेस लाइक दैट, एंड बट इट वाज क्लीन लाइक हर ब्लू ड्रेस, पर एकदम साफ सुथरा दिख रहा था, मतलब सारी चीजें अपनी जगह पर थी। ठीक है, एवरीथिंग वाज नीटली अरेंज नियर द हाउस, सो इट रिमाइंड हर ऑफ हर ब्लू ड्रेस। ब्लू ड्रेस भी फेडेड था उसका, आयरन वायन नहीं रहता था, बट क्लीन साफ सुथरा ड्रेस वो रोज पहनती थी। ओके, दैट शी वॉर एवरी डे टू स्कूल। Thus, Maddie reminded of the same blue dress by looking at the house, because house was neat and tidy. साफ सुथरा, although house was very small, although means color was faded, color of the house was faded, it was old one, old fashioned type of house, smaller one, but still house कैसा था, that was neat and tidy, एकदम साफ सुथरा clean type का. That's right. Third question clear to everybody? Question number 3 answer is clear to everybody. Nobody replying, silent spectators, yes, just like Vanda. Good, good Anay. Some people give an answer in chat. Yes, okay. Chanchal is there. Now fourth question from the same page. What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? अभी जो मैडी है वो क्या सोच रही थी, ये फर्स्ट थिंग, और उसने कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। मतलब मैडी तो यही सोच रही थी दैट शी शुड नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेक्टर, साइलेंट स्पेक्टेक्टर व्हेन पेगी वाज बुलिंग वांडा। जब पेगी वांडा को मतलब बुली कर रही थी, टीज कर रही थी, मेकिंग फन ऑफ हर एट दैट टाइम, शी शुड नॉट बी द साइलेंट स्पेक्टेक्टर। ये उसको पहली मतलब गलती लग रही थी उसकी। So she promises herself that now she won't bear such a kind of behavior by anyone to anyone. मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है, किसी को भी ऐसे मतलब बुली कर रहा है, then she will stand by the child. वो बच्चे के साथ वो खड़ी रहेगी and she will try to oppose the person who is doing so. She would try to oppose the student who is doing so. जो ऐसा कर रहा है तो उसको वो मतलब अपोज करेगी. So she would not let anybody injustice on younger children. छोटे बच्चों को ऐसा injustice वो होने नहीं देगी. Although it means she should lose her friendship with Peggy. या उसकी फ्रेंडशिप भी टूट जाए या उसके साथ मतलब कुछ भी हो जाए, बट स्टिल शी वोंट लेट एनीबडी टू बिहेव लाइक दैट. ठीक है, सो दिस वाज मैडीज हार्ड थिंकिंग दैट शी टुक डिसीजन वेरी फर्मली that now onwards she was not going to accompany even Peggy for such a kind of things, and if any other student is doing so, she would try to oppose the student. Although it means losing a close friendship from Peggy or anybody else, still it is okay. Still means she would accept that thing. She would accept that thing that it's okay if she will lose the friendship, then still it is okay. Okay, so this is what she decided. Okay, now oral comprehension check, page number 79. Please open page number 79 from your page, from your textbook. First question from page number 79. What did the girls write in the letter? गर्ल्स जो है तो उन्होंने मतलब लेटर में क्या लिखा. Now both the friends decided that they can apologize by writing a letter.
because they didn't get Wanda there, na? She left the town before they reached. They मैम went to Bogey's height, but before they could reach, Vanda's family left the town, left the place. So they decided to write a friendly letter to Wanda. वैंडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखने का उन्होंने सोचा. हु कौन थे वो लेटर लिखने वाले? हु आर दीज? वेरी गुड, पेगी एंड मैडी. ओके, सो फर्स्ट दे वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर. उनको माफी मांगनी थी. And then they wanted to ask her some common question, that did she like मैम her new teacher? हाँ, मैम यहाँ पे कैसे yes. समझेगा कि ये लेटर मतलब क्वेश्चन में बोला है ना कि वो गर्ल. क्या नहीं, उसका तो क्रिसमस के टाइम में टीचर को लेटर आया था. हाँ, टोटल मतलब 3 लेटर्स के बारे में डिस्कस किया. एक इन्होंने जो लिखा वो, एक उसके पापा ने जो टीचर को लिखा था, और एक उसने मिस मैसन को लिखा था बिफोर द एंड ऑफ क्रिसमस, सॉरी बिफोर क्रिसमस सेलिब्रेशन और एट द डे ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन. तो ये चीज तो मतलब क्लैरिफाई हुई नहीं ना कि उसने माफ किया कि नहीं किया, उसका लेटर उसके तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा. दैट इज अनसर्टन. वो अनसर्टन है बेटा. दैट इज नॉट क्लियरली मेंशन इन द बुक एनीवेयर. कहीं भी स्टोरी में वो आया नहीं है. बट ये उनका खुद का सेटिस्फेक्शन कि उन्होंने माफी मांग ली ऐसे. दैट्स व्हाई इट इज रिटन. ओके अनय, इज इट क्लियर टू यू? यस. Okay. So Maddie and Peggy, they decided to write a friendly letter to Wanda. So first they would like to apologize for their behavior. पहला उनको माफी मांगनी थी. Second, they wanted to ask some common question, like did she like her school, did she like her teacher, okay, etc. So then they inform her regarding winning her competition. ड्राइंग कंपटीशन उसने जीता था ना, तो उसके बारे में उसको बताया. दे प्रेज हर ड्राइंग स्किल. उसकी ड्राइंग की स्किल्स की बहुत तारीफ की. और इवन बताया कि इवन सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक हर ड्राइंग आर्ट. बहुत सारे बच्चों ने मतलब उसका आर्ट पसंद किया ऐसे. सो लेटर वॉज जस्ट मतलब ऐसा लेटर लिखा कि जस्ट अ गुड फ्रेंड इज राइटिंग टू अनदर गुड फ्रेंड. मतलब एक अच्छा फ्रेंड दूसरे अच्छे फ्रेंड को कुछ लिखता है. ओके, सो लेटर ऐसे मतलब अजीब, मतलब बुद्धि भ्रष्ट मत होने देना. तो एक गुड फ्रेंड दूसरे गुड फ्रेंड को जैसा लेटर लिखता है वैसे काइंड का वो लेटर था. ओके, उसमें कोई टीजिंग नहीं था, कोई टाइप का मतलब ऐसे उसको मतलब बुरा लगे, हर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं था. जस्ट एक गुड फ्रेंड राइटिंग टू अनदर गुड फ्रेंड. एंड मीन्स उसमें कुछ चीजें पूछी है, कुछ चीजें बताई है, कोई चीजों की तारीफ की है. सच ए काइंड ऑफ लेटर वाज रिटन बाय पेगी एंड मैडी. इज इट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी? Okay. Now, second question. Did Maddie and Peggy get a reply? Maddie और Peggy को reply मिला क्या? Who was more anxious for reply? Reply के लिए कौन ज्यादा राह देख रहा था? And how do you know? और आपको कैसे समझा? Okay. No, both of the friends didn't get any reply from Vanda's side. Vanda के side से दोनों को भी कुछ reply नहीं मिला. Okay. Maddie was anxious क्योंकि पेगी ने तो ग्रांटेड पकड़ा था ना कि उसकी वजह से ही वो ड्राइंग कंपटीशन जीत पाई ऐसे. हाँ, क्यूरियस की मतलब पहुंचा होगा कि नहीं लेटर, कैसे क्या मतलब हुआ ऐसा. दैट इज ओके. सो no, they didn't get a reply from Wanda and Maddie was more anxious. Maddie को मतलब ज्यादा वो curiosity थी पेगी से, because she was really very upset and sad for Wanda. वांडा के लिए बहुत ज्यादा अपसेट भी थी और बहुत ज्यादा दुखी भी थी कि ऐसे टाइप का भी मतलब लोग हो सकते हैं. She had assumed that Wanda was deeply hurt. उसने assume किया कि वांडा जो है तो वो बहुत ज्यादा hurt हुई है ऐसे, and that's why she was not replying to their letter. Although friendly letter लिखा है फिर भी means Wanda is not interested in replying anything to them. Okay.
एंड शी ब्लेम हरसेल्फ, खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि उसी की वजह से ऐसा हुआ. इट मीन शी इज एक्सेप्टिंग हर मिस्टेक, उसकी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रही थी वो. So Maddie used to have sleepless night. बेचारी रात में सो नहीं पा रही थी. Frightful dreams उसको दिख रहे थे regarding Wanda. So it suggests she was really very sensitive girl. Maddie कैसी थी? एकदम sensitive type की लड़की थी. Very very sensitive girl. Okay. Oral comprehension check 3. Question number 3. How did the girls know that Wanda liked them even though they had teased her? अभी दोनों गर्ल्स का ऐसा मतलब ओपिनियन था कि वैंडा उनको पसंद करती थी. इवन दो दे टीज वैंडा, उसका मजाक उड़ा रहे, उसका फन बना रहे, उसको मतलब बहुत ज्यादा मतलब उसकी खींच रहे, ऐसे टांग खींच रहे, उसको हर्ट कर रहे, बट स्टिल शी लाइक देम, वो उनको पसंद करती है ऐसे. तो ये कैसे पता लगा? ओके, सो वेरी गुड. So Maddie and Peggy both realize that Wanda liked them, because although means they tease her, still she liked them because she gifted them 2 beautiful dresses. दोनों को 2 beautiful dresses दिए. Green one जो red trimming जो थे जिसको, that is given to Peggy, और blue one that is given to Maddie. Okay, and even she had drawn their faces. अनक्लियर थे पर उनके जो यहाँ नेक तक के फेसेस उसने वहां बना के रखे थे. ओके, सो तो वो ड्रेस के वहां मतलब अनक्लियर टाइप में, मीन्स दे कुड सी देयर फेसेस. So when they saw these things at that time, both of them realized that Wanda really liked them. मीन्स उसने माफ कर दिया उनको, वो उनको पसंद करती थी ऐसे, like that. ऐसे उनको लगा. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 79 के तीनों क्वेश्चन में इज देयर एनी डाउट टू एनीबडी? किसी को कोई डाउट है बेटा? इज देयर एनी डाउट टू एनीबडी? प्लीज रिप्लाई. वी कैन मूव अहेड थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ओनली वन गर्ल इज आंसरिंग. ओके, others are simply sitting. जैसे उनके खुद के स्टैचू बना के उनको मतलब हार माला पहना के ही मेरे लेक्चर में बिठाया. इट शुड नॉट बी द केस. यू शुड बी एक्टिव. ट्रांजैक्शन एक्टिव होना चाहिए ना. मैं अकेली बकवास करूं और तुम लोग सिर्फ बैठे रहो, उसमें भी कोई सोया होगा पता नहीं, या फिर कोई किसी का ध्यान कहाँ होगा, जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फोन एंड थिंकिंग एनीथिंग एल्स. ऐसा भी हो सकता है. फिजिकली अटेंडिंग लेक्चर, मेंटली रोमिंग एनीवेयर इन द टाउन, कोल्ले हिल्स, यहाँ वहां कहीं तो भी घूम रहा है. ऐसा कोई है क्या यहाँ? फिजिकली तो यहाँ दिख रहा है मुझे, बट मेंटली मतलब यहाँ वहां घूम रहा है. दैट्स व्हाई कुडंट फोकस व्हाट आई वांट टू से. नहीं है तो देन व्हाई यू पीपल आर डम एंड डीप. मूक बधिर स्कूल के मतलब स्टूडेंट्स को तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ. आई डोंट हैव दैट स्किल. मेरे अंदर वो स्किल दिया ही नहीं है. उसका एक स्पेशल कोर्स करना पड़ता है, फिर मैं मूक बधिरों को पढ़ाने जाऊंगी. तो मैं अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. सो दैट शुड मीन्स यू शुड रिमाइंड मी योर प्रेजेंस, यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर. ठीक है, तो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, ये आपका प्रेजेंस मुझे रिमाइंड करवाओ बेटा. अभी 10 बच्चे हुए 14 में से, 10 का अटेंडेंस दिख रहा है. ऐसे आओ जाओ घर तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू शुड बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर लेक्चर्स. और तुम्हें समझता है सब कुछ पढ़ाया हुआ, तुम्हारा मतलब अच्छे हो, बुद्धि से होशियार हो, देन व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस. सो प्लीज प्लीज प्लीज, बोर्ड एग्जाम्स है और कुछ भी हो सकता है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. ऐसे केस में तो ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट टू बी वेरी केयरफुल. ओके, प्लीज लेक्चर्स अटेंड करो. एट द सेम टाइम शेड्यूल बनाओ. 8 घंटे तो भी पढ़ना चाहिए दिन में, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स. स्कूल के और ट्यूशंस के छोड़ के 8 आवर्स डिवोट करो. मॉर्निंग में 4 घंटे टाइम निकालो, इवनिंग में 4 घंटे. पहले 3-3 घंटे से करो भले ही,
अगर 4-4 घंटे ज्यादा सिटिंग हो रहा है तो फर्स्ट ट्राई अबाउट योरसेल्फ 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, 3 आवर्स इन द इवनिंग, ठीक है। पर टाइम निकालो तो निकलेगा। सुबह जल्दी उठो, 4 बजे से 7 बजे तक सुबह का हो जाएगा 3 आवर्स, और शाम को जैसे क्लासेस खत्म होते, खाना पीना हुआ कि शाम को मतलब अपार्ट फ्रॉम कंप्लीशन के लिए 3 घंटे दे दो, ये शाम के दो या सुबह के दो, और शाम के ही दो, और सुबह मॉर्निंग में मतलब जो है वो रीडिंग के लिए डिवोट करो टाइम आपका, ठीक है। डेडिकेट योर टाइम, डिवोट योर टाइम ओनली फॉर रीडिंग, रीड द बुक वेरी थरोली, ओके, दैट विल मेक यू नॉलेजेबल, एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, ज्यादा अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मतलब लगेगा। चलो पेज नंबर 79 निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक वेंडास फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? व्हाई डू यू थिंक वेंडास फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? वेंडा मैम की हम जो 10 मिनट फैमिली में है, साइंस का लेक्चर है। I couldn't listen, your voice was breaking. 10 मिनट में साइंस का लेक्चर है मैम। तो 10 मिनट है ना बेटा। हाँ, आफ्टर 5 मिनट्स ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ कि मैं छोड़ूंगी, मुझे पता है। और वो लेक्चर में भी बाकी बच्चे आए तब तक 5 मिनट, 3 5 3 10 तक तो हो ही जाता है ना, 4 5 4 4 5 एटलीस्ट 5 मिनट्स लगते ही ना। हाँ ठीक है ना, फिर भी 2-3 मिनट तो मिलते हैं ना। और मैं आई कैन लीव यू बिफोर 5 मिनट्स ना, 10 मिनट्स आर देयर, ओके। सो वंडा की फैमिली अलग सिटी में क्यों गई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? और तुम्हें लगता है कि वहां की लाइफ मतलब अलग रहेगी उनके फैमिली के लिए? क्योंकि फर्स्ट थिंग, वंडा's फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी बिकॉज Vanda's father didn't like insulting behavior towards her child in school. स्कूल में जो इंसल्टिंग बिहेवियर हो रहा था, ओके, फॉर वांडा एंड फॉर हर ब्रदर, उसके भाई के लिए भी सेम था, उसके लिए भी सेम था, एंड दैट्स व्हाई डे बाय डे बोथ द चिल्ड्रन मींस दे वेयर गेटिंग हर्ट, और वो एक्सपोजर जो मिलना चाहिए बच्चों को वो उनको नहीं मिल रहा था, ये फर्स्ट थिंग, ओके। एंड सेकंड वन कि मींस फनी नेम्स, ब्लू ड्रेस, उनके मतलब फिजिकल फीचर्स, इस पर से भी टीजिंग हो रहा था डे बाय डे। एंड आई थिंक कि लाइफ इन सिटी वुड बी रियली डिफरेंट फॉर देम बिकॉज नोबडी केयर्स इन सिटी about funny names, about funny looks. Everybody is busy in their own work, so nobody cares for the others. दूसरे चीजों के लिए केयर नहीं होता ये, ठीक है, कोई मतलब टेंशन नहीं होता है, कोई टेंशन लेते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई मतलब वो डिफरेंट पीपल जो है, तो वो मतलब सिटी के लोग मतलब डिफरेंट पीपल भी रहे, डिफरेंट नेम्स भी रहे, डिफरेंट उनके फनी नेम्स हो, फनी मतलब फिजिकल फीचर्स हो, कैसे भी टाइप के रहो, नोबडी मींस टेक केयर, किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है, दैट्स व्हाई। Okay, tomorrow we will meet at the same time. We will discuss another question. आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, you can find it in Teachment itself. Okay, attendance भेजती हूँ, चलो बाय बाय।